Hello everyone. Once again, all of you are welcome to the new class of Tapasya classes. Today's topic is for class 10, chapter 1, part 1. Chapter 1 is real numbers, and in the previous class I already explained that we divided the first chapter in 5 parts. So it is a part 1 continued, that is Euclid division algorithm. तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने तपस्या क्लासेस को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नए क्लासेस का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप जो है हमारी क्लासेस को कंटिन्यू कर पाएँ। तो इस क्लास को देखने से पहले आप पिछली क्लास को देख लीजिएगा, ताकि उसमें हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के थ्रू एचसीएफ फाइंड आउट करना सीखा था। आज हम कुछ एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, जो कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की एप्लीकेशंस को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। सो प्रोसीड करने से पहले आप फर्स्ट क्लास को ज़रूर देख लें, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। तो चलिए चलते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा वो जो डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं उसमें पहला क्वेश्चन ये इस तरह से है कि शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q or 3q plus 1 or 3q plus 2 for some integers q. So हमें ये प्रूव करना है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q 3q plus 1 और इनमें से किसी भी तरह से हो सकता है। तो हम सॉल्व जब करेंगे तो हमारे दिमाग में यूक्लिड जो डिवीजन एल्गोरिदम का या लेमा का जो स्टेटमेंट है, दैट इज a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, and where r is less than or equals to is greater than or equals to 0 and less than b, वो ध्यान में रहना चाहिए। तो उसके हिसाब से हम we suppose that a be any positive integer and b equals to 3. So by Euclid's division lemma we have a equals to 3q plus r, where r is greater than or equals to 0 and less than 3, means जो b होता है here b is equals to 3, so r must be less than 3, that is r, the values of r equals to 0 1 and 2. So if we put these values in the lemma, we get a equals to 3q plus 0 or a equals to 3q plus 1 or a equals to 3q plus 2. Now this is what we have to prove. Yeah, therefore a equals to 3q because 0 has nothing, or 3q plus 1 or 3q plus 2. So by this we have shown that any positive integer is of the form of 3q or 3q plus 1 or 3q plus 2. So very simple questions, but you have to just remember the Euclid division lemma in your mindset. Okay, now we go to the next question. Question number 2. Show that every positive even integer is of the form 2q and every positive odd integer is of the form 2q plus 1. Now, as you know that even number is a number which is divisible by 2, and those numbers which are not even, that is which are not divisible by 2, are odd integers. So again we will start the question by letting what we will let that first of all we should know the Euclid division lemma a equals to bq plus r in our mind, and let a be an positive integer and b equals to 2, because here we have to prove that even integer is of 2q form and odd integer is in the form of 2q plus 1. So we assume b equals to 2, then as per Euclid division lemma we will get what we get, a equals to 2q plus r. So b is 2, so 2q plus r, where r is greater than or equals to 0, means r 0 भी हो सकता है, r 1 भी हो सकता है, but it should be less than 2, that is 2 नहीं हो सकता। तो इसके बाद when we will proceed further, तो r equals to 0 and 1, therefore we can write that a equals to 2q or
a equals to 2q plus 1. Now what is 2q? 2q is a multiple of 2, so it is divisible by 2, so hence 2q is an even number, even integer, as it is divisible by 2, because an integer can be even or odd. Now that what we have to understand, कि any number can be divided into two parts. Either it will be an even number or it can be an odd number. So the other number, that is a equals to 2q plus 1, is an odd integer. That is the form which we have to prove or show. So hence this question is completed here. So it's very easy. Just you have to understand the concept of using the Euclid division lemma. Okay, now we come to the next question. The next question is, use Euclid division lemma to show that. Now this is an important question which was asked in the previous year question, that use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. So this is we have to prove. Now again, what we will do, we again do assume that a is a positive integer and b equals to 3, then a equals to either 3q or 3q plus 1 or 3q plus 2. as in the previous questions we already understand कि हम a को किस तरह से लिख सकते हैं अगर b equals to 3 होगा तो b अगर 3 होगा तो हमारा r या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, तो उसी को अप्लाई किया तो a equals to 3q plus 0 यानी कि 3q रह जाएगा, 3q plus 1 और 3q plus 2. अब हमारे पास तीन केसेस बनेंगे, a equals to 3q और 3q plus 1 और 3q plus 2. तो अब स्क्वायर वाला केस लेना है, केस 1 पहले लेते हैं. a equals to 3q है, जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q स्क्वायर यानी कि इक्वल्स टू 9q स्क्वायर. 9q स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर. अब अगर हम 3q स्क्वायर को m मान लें, a इक्वल्स टू 3m हो जाएगा. अगर हम 3q स्क्वायर को m मान लेते हैं तो a इक्वल्स टू 3m हो गया. यानी कि जो हमारा क्वेश्चन के अंदर था कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m, तो वो हमारे यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि इट कम्स आउट 3m. नाउ केस सेकंड लेते हैं. केस सेकंड का मतलब a इक्वल्स टू 3q प्लस 1, a इक्वल्स टू 3q प्लस 1. ठीक है, तो अब इसके अंदर हमारा क्या होगा, स्क्वायरिंग करेंगे हम. a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर. इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 हो जाएगा. अब इसमें हम कॉमन ले सकते हैं 3q कॉमन लिया तो अंदर ब्रैकेट में आ गया 3q प्लस 2 प्लस 1. अब अगर हम 3q यानी कि q ब्रैकेट 3q प्लस 2 को m मान लें तो ये हो गया 3m प्लस 1. तो दैट इज सेकेंड फॉर्म हमारी कवर हो गई. इसके अंदर हमने m किसको माना है, तो हम m अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन सिचुएशन मान लेंगे. m इस केस में q ब्रैकेट 3q प्लस 2 हो जाएगा, तो हमारा 3m प्लस 1 की फॉर्म में प्रूफ हो जाता है इसके अंदर. तो आगे हम चलते हैं, केस 3 पे जाते हैं, यानी कि a इक्वल्स टू 3q प्लस 2. अगेन हम क्या करेंगे, हम करेंगे a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर. फिर उसके बाद ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4. देखिए ध्यान से, तो अब हम जो 4 आया हमारा एंड में, 4 को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं 3 प्लस 1 में. जब जैसे ही 3 करेंगे तो वो हमारा इक्वेशन के साथ में ले जाएंगे और ये हमारा कॉमन पार्ट निकल के आ जाएगा. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 ब्रैकेट 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1. अब यहाँ पे हम जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है उसको m मान लेंगे. जैसे ही हम इसको m मान लेंगे तो ये 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ जाएगा अगेन. तो m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 जैसे ही मानेंगे तो वो 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ जाएगा. तो हमने पाया कि जो हमारा कोई भी पॉजिटिव स्क्वायर नंबर का पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर होता है वो या तो 3m की फॉर्म में आता है या 3m प्लस 1 की फॉर्म में आता है. ये हमने इसके अंदर प्रूव कर दिया. तो देखें आप, इसके अंदर स्टेप्स के है, हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा को ही स्टेप्स की फॉर्म में लेके चलना है, तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगे. और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से. पेपर में बहुत ही फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं.
बेसिकली स्टैंडर्ड वाले जो पेपर्स होते हैं उसके अंदर ज़रूर आता है, या तो HCF निकालने को आता है या हमारा इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो अब एक और लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम इसके अंदर। उस लास्ट एग्जांपल के अंदर वो है कि क्यूब की बात करेगा कि शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m+1 और 4m+3 फॉर सम इंटीजर m। तो अब इसके अंदर अगेन हम वही करेंगे, लेट a बी एन ए पॉजिटिव इंटीजर। जैसे हम a किसी पॉजिटिव इंटीजर को मानते हैं तो हमारा जो नंबर होगा वो किस फॉर्म का हो जाएगा। अब क्योंकि हम अगर हमारा b4 है तो हमारे पास रिमाइंडर 0, 1, 2 और 3 तक जा सकता है। तो हमारे पास ये जो हमारे फॉर्म्स निकल के आएंगे उस पॉजिटिव इंटीजर के वो आएंगे 4q, 4q+1, 4q+2 और 4q+3। 4 केसेस बनेंगे इस केस में। 4 केसेस के लेमा के थ्रू हमारे बन गए। तो अब केस 1 लेंगे। केस 1 हो गया 4q। तो 4q का जब हम इसका क्यूब करते हैं तो 4q यानी 64q क्यूब हो जाता है। इसके अंदर अगेन हम 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन लेती है हमारे पास, दैट कम्स आउट टू बी 4m। अगर हम m को 16q क्यूब ले लेते हैं तो इस तरह से हमारा केस 1 कंप्लीट हो जाता है। फिर केस 2 लेते हैं। केस 2 के अंदर 4q+1 लेते हैं, उसमें a क्यूब करते हैं तो 4q+1 का होल क्यूब, उसको हम आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करेंगे। अब यू शुड नो द आइडेंटिटी ऑफ a+b होल क्यूब, दैट इज a³ + 3a²b+3ab² + b³। तो उसके हिसाब से हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हमने पाया कि ये जो ओपन होने के बाद आया वो आया 64q³ + 48q² + 12q + 1। अब अगर हम जो हमारे इक्वेशंस हैं, इक्वेशन के 1 वाले पोर्शन को छोड़ के 4 कॉमन सब में निकल के आ जाएगा। जैसे ही 4 कॉमन आएगा तो हम उसको लिख सकते हैं 4 ब्रैकेट 16q³ + 12q² + 3q ब्रैकेट क्लोज +1। अब जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है अगर हम उसको m मान लें तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा। देखिए क्या निकल के आ जाएगा, 4m+1। क्या मानने पर, जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है अगर हम उसको m मान ले तो इस तरह से केस 2 भी हमने देखा कि वो 4m+1 की फॉर्म में आ गया जो कि क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है। अब इसके आगे चलते हैं, केस 3 लेते हैं। केस 3 का मतलब है कि हम a को 4q+2 की फॉर्म में लेंगे। जब इसकी फॉर्म में लेंगे तो हम फिर क्यूब निकालेंगे, होल क्यूब करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला निकालने पे हमारे पास ये क्वेश्चन बन जाएगा 64q³ + 96q² + 48q + 8। इसमें 4 कॉमन लेंगे। जैसे ही 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये चीज़ें निकल के आ जाएंगी। तो a = 4m की फॉर्म में आ जाएगा, जिसमें कि हमने m = 16q³ + 24q² + 12q + 2 लेंगे। तो अगर आप अप्लाई करेंगे इसको तो बड़े आसानी से आपको समझ में आएगा। तो ये भी हमारे पास 4m की फॉर्म में आ गया। अब लास्ट केस 4 ले लेते हैं इस केस में, जबकि 4q + 3 होगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर ये आया। इसके अंदर आप देखिए कि अगर हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो 64q³ + 144q² + 108q + 27 आ रहा है। अब जब ये 27 आ रहा है तो बाकी सारे नंबर्स 4 से डिविजिबल हैं, तो हम 27 के ब्रेकआउट कर लेंगे। इसमें से 3 अलग कर देंगे, 24 अलग कर देंगे। इसको लिखने का तरीका ये हो जाएगा। देखिए हमने 27 के टुकड़े कर दिए। जब टुकड़े कर दिए तो वो इस तरह से हो गया हमारे पास। अब जो हमारी फर्स्ट 4 टर्म्स है उसमें 4 कॉमन हो जाएगा। ये देखिए 4 कॉमन हो गया। अब 4 कॉमन होने पर जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है अगर मैं उसको m मान लूँ तो ये 4m+3 हो जाएगा। m देखिए मैंने क्या माना है, m। तो a इज ऑफ द फॉर्म 4m+1 और 4m+3। ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और पहला वीडियो और इस वाले वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो उसके बाद आपको बड़ा इजी हो जाएगा समझना, और आपकी एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है इसी के साथ ही। और आप उसको करें। उसके अंदर कोई अगर आपको समस्या आती है तो आप वीडियो देखने के बाद कमेंट में लिख सकते हैं। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो भी आप मुझे बताएं। आपके सजेशंस जो हैं वो हमेशा मेरे लिए वैल्यूएबल हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपके वैल्यूएबल सजेशंस हैं वो मेरे लिए हमेशा ही कामयाब करेंगे मुझे।
मेरे वीडियो को अच्छा बनाने में हेल्पफुल होंगे। आप शेयर करें, अच्छे से देखें। और इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूँगा जय हिंद, जय भारत,